to learn a speaking English course. Generally, there are many languages, but the importance for English is something different. It is called a global language. It is called universal language. So, there is a beautiful saying, learn from the words, speak with the world. Learn from the words, speak with the world. If you want to expand your world, one should have good communication skills. And there is a beautiful saying, good communicators are good managers. There is a saying, and a good communicator must be a good listener. So we are going to learn English language. So if you want to speak or if you want to phrase, if you want to construct a sentence, you should know the minimum grammar. So English language, we are going to learn a simple grammar. For example, we start with tenses, if condition, get help, direct and indirect speech, and also get help. So by learning these topics, one should frame a sentences easily. And one more thing is, after learning, you need to improve communication skills. You need to improve presentation skills. If you want to achieve high standards in your life, one should have a great communication skills. I can say sound communication skills and also great confidence. Generally, everybody wants to be successful in their life. If you ask anybody, he wants to be or she wants to be successful in their lives. Generally, success depends on many things. If I ask you, sir, you may say one or two things. If I ask you, madam, if you can say one or two things. If I ask Sandhya, she may say 2, 3, 4 things. But if you ask me, I say basically success depends on 4 important things. Or I can say 4 pillars of success. First one is communication skills. Second one is public relations. Third one is confidence. And fourth one is attitude. These are the 4 pillars, right? So communication skills. Communication, what is communication? What are the types of communication? What are the levels of communication? And what are the forms of communication we are going to learn? मैं जनरली एक बात बताता हूँ सर, तो कम्युनिकेशन के बारे में जो मेन थिंग है ना, वो मैं बहुत अच्छा समझा सकता हूँ. हर एक ट्रेनर एक ग्रेट है सर. हैदराबाद में जितने भी ट्रेनर्स हैं सारे ग्रेट ट्रेनर्स हैं. मेरा ये मानना है, मैं भी एक ग्रेट ट्रेनर हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनसे ज्यादा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ. मैं भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू टीच, राइट? So communication means, what is communication? What are the types of communication? What are the levels of communication? What are the forms of communication? And what are the components of communication? So entire 45 days में हम एक छोटी important बात सीखेंगे, components of communication. अगर मैं लिखूं components of communication में दो मार्कर मंगा लेंगे मैडम, मंडे है ब्लू एंड ब्लैक. वर्ड्स, वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, वी कॉल इट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स 3 हैं. एक है वर्ड्स, दूसरा है वॉइस, तीसरा है बॉडी लैंग्वेज. पूरा मिला के 100% होता. बट हम शेयर करें तो वर्ड्स पे जाएगा 20%, वॉइस पे जाएगा 30% एंड रिमेनिंग बॉडी लैंग्वेज 50%. ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग शार्प हो जाते हैं. अरे मैं एक 1 आवर स्पीच दिया, मैं खिताब करा, 1 आवर जो है लोगों से बात करा, तो मेरे सारे वर्ड्स कितना हो गए? ओनली 20%. हाँ, मेरा वॉइस पे 30%. मैं कैसा प्रोनाउंस करा वर्ड्स को, कितना वॉइस, पिच लेवल, मॉड्यूल्स बोलते हैं उसको, टोन ऑफ वॉइस, मॉड्यूलेशन, पिच, वॉल्यूम, ये सारे लेवल्स है इसमें, एलिमेंट्स है इसमें टोन ऑफ वॉइस में. और तीसरा सर बॉडी लैंग्वेज.
मीन्स आपसे मैं कैसा, आपकी तरफ कैसा देखा, ऐसा मुस्कुराया मैं, मेरा आई कांटेक्ट कैसा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है। सिंपल सर, अगर मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया, आपके दिल से मैं गिर जाऊंगा। जैसा कि ऐसा ठहरा मैं, फॉर एग्जांपल ऐसा ठहर के क्लास बोल रहा हूं मैं, आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे सर, सिर्फ इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। इसको ठहरना चाहिए ना, इसको कितना एरोगेंट है, कितना जो है बेकार आदमी है बोल के आपके दिलों से निकाल देते हैं। सिंपल बॉडी लैंग्वेज। सो आई कैन से बॉडी लैंग्वेज इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, और जो है लाइक गेस्चर्स है और पोस्चर्स है। ये सारी चीजों के ऊपर जो है हम काम करेंगे 45 डेज में। इंग्लिश सीखना तो बहुत आसान है, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे, कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, कैसा कम्युनिकेट करना। क्यों? जिंदगी भर हम करने का काम क्या है? कम्युनिकेट करना चाहिए। जब आप 3 साल के बाद बात अच्छे सीखने लग जाओगे, 3 साल से लेकर मरते दम तक एक ही काम करना है आपको। एक काम सांस लेना है, दूसरा कम्युनिकेट करना है। समझ में आ रहा है? तो हर जगह हर एक शख्स से हम बात करते रहते, कम्युनिकेट करते रहते। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, राइट? तो अपना बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों को जो है अच्छे अंदाज में समझा सकते हैं। तो कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन मीन्स it is a process of sharing your opinions, it is a process of sharing your thoughts, it is a process of sharing your emotions, and it is a process of sharing your experiences with others in a understandable way, in a understandable way, that is called communication. हमारा बचपन से ये मानना था कि कम्युनिकेशन बोले तो इंग्लिश बात करना, स्टाइल से बात करना बोल के समझते थे मैडम, लेकिन अब मालूम हुआ कि कम्युनिकेशन मीन्स इसके 4 फॉर्म्स है। 1 इज रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैं सिर्फ एक छोटा चार्ट ड्रा करूंगा यहाँ पे, पूरा लाइफ का चार्ट है सर, मेरी आपकी सबका लाइफ का चार्ट है वो। कम्युनिकेशन में देयर आर 4 फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज रीडिंग, second one is writing, third one is listening and speaking. तो यहाँ पे very important thing is listening. Listening means what? Listening means what? Listening means understanding. Understanding what? Understanding 2 things. One is motive, second one is mindset. अब देखो कम्युनिकेशन बोले तो हम क्या समझे? इंग्लिश बात करना समझे? नहीं, कम्युनिकेशन मीन्स लिसनिंग है। लिसनिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग व्हाट? अदर्स मोटिव एंड अदर्स माइंडसेट। अच्छा कम्युनिकेटर बोले तो बात करने वाला नहीं है, अच्छा सुनने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ए ग्रेट लिसनर, यू शुड बी ए, थैंक यू मैडम, इसके लिए गए थे आप। सो कम्युनिकेटर मीन्स ग्रेट लिसनर। ग्रेट लिसनर मीन्स हु अंडरस्टैंड्स वेल। घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर एक हस्बैंड है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स, योर वाइफ एंड योर किड्स, योर पेरेंट्स। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे लिसनर नहीं हैं। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं। तो घर में मेरी वाइफ बोला कि अगर असद नहीं मिला होता तो मेरी जिंदगी क्या होगी? पूरे 600-700 करोड़ लोगों में असद जैसा इंसान नहीं है। माई वाइफ शुड फील दिस। मेरे बच्चे ये मानना कि मेरे फादर के जैसे अच्छे फादर पूरे हैदराबाद में नहीं है। असद इज द बेस्ट फादर। तो मेरा नेबर समझना कि असद के उतना अच्छा नेबर शायद नहीं होगा हैदराबाद में। यस, मेरे स्टूडेंट समझना कि असद जैसा ट्रेनर हमने अब तक नहीं देखा। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल? थ्रू माय कम्युनिकेशन। थ्रू माय कम्युनिकेशन मीन्स थ्रू माय स्पीकिंग, थ्रू माय लिसनिंग, थ्रू माय अंडरस्टैंडिंग, राइट, थ्रू माय नॉलेज। इसलिए बोलते हैं ग्रेट ट्रेनर होने के लिए मीन्स द नॉलेज यू शेयर, द लवर यू शवर,
the love you shower, the care you take, and the way you teach makes you world's best teacher. Best teacher. तुम हम यहाँ सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए नहीं आए, लाइफ स्किल्स. ट्रस्ट मी, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव मी. आप अपने आप को बिलीव कीजिए और असद को बिलीव कीजिए एंड यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स. 2 मंथ्स के बाद लाइफ जो है अलग हो जाएगी हमारी. बहुत छोटी दिखती हमारी लाइफ, पूरा वर्ल्ड छोटा दिखता. डिसिप्लिन क्यों? आपके पास नॉलेज आ जाता. जब आपके पास नॉलेज आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, हर चीज आपके सामने छोटी लगती. आपको कितना भी बड़ा बोल दो, आपके सामने छोटा लगता. तो इसमें मैं क्या करूंगा, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम काम करेंगे. ग्रामर सीखते हुआ, इंग्लिश प्रैक्टिस करते हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो है हम काम करेंगे. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे हम. सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करेंगे, सेल्फ इमेज के ऊपर काम करेंगे, एटीट्यूड के ऊपर काम करेंगे. तो according to Shukera, international speaker, he says 85% of the success depends on only positive attitude. Only positive attitude. इसलिए there is a beautiful saying, better the attitude, better the relations. Better the attitude, better the results. अपना एटीट्यूड अच्छा करवा, रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे. ओके, पहले आप अच्छा इंसान बनो. आप मीन्स माइंड, आप ऐसा कोई भी, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, थिंग्स विल चेंज. तो इसमें एक्टिविटीज भी रहते सर बहुत सारे. अब जैसा कि गोल सेटिंग के बारे में, तो स्टूडेंट्स को क्या करना सर, फर्स्ट एक गोल सेट करना, कैसा सेट करना बताना बच्चों को. बचपन में हमारे नहीं सिखाया पड़ता. एक्चुअली हम जब हम पढ़ते थे 10th में, इंटरमीडिएट में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लिए, तो वी डोंट नो सॉफ्ट स्किल्स, वी डोंट नो यूट्यूब, वी डोंट नो पूरे. लेकिन मैं बच्चों को बहुत बोलता हूँ, यू आर लकी बेटा. आज मोबाइल को अच्छा इस्तेमाल करो. आप मोबाइल को अच्छा इस्तेमाल करो. आप जैसा आप जाके सीखना बोले तो 1000 रुपये पे करना, ट्रैवल करना आपको, तब जाके आपको नॉलेज मिलता. खाली मोबाइल एक 20-25 हज़ार का मोबाइल है, यू कैन डू वंडर्स. मैडम लाखों रुपए कमा रहे मैडम एक मोबाइल से नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, लाखों रुपए भी कमा रहे हैं. राइट? तो इट इज पॉसिबल हाउ यू यूज दैट डिवाइस. तो हम गोल सेटिंग के बारे में बोलेंगे. मैं एक्टिविटी कराऊंगा, फॉर एग्जांपल एक ड्रा करूंगा ऐसा, इसीलिए बोला थोड़ा स्पेस बना दो, जैसे बोला था ना आपको. तो मैं क्या करता हूँ, बच्चे को बुला के थोड़ा लास्ट में भेजता हूँ बच्चे को. ट्राई टू हिट दिस सर्किल. तो मैक्सिमम 20 लोगों में कोई भी नहीं मार सकते मैडम. क्यों? मैं तो छोटा बना दूंगा. तो समटाइम्स सुनते ना सुनने, तो ध्यान लगता, इधर लगता, थोड़े लोग उधर मारते, इधर नहीं मारते वो लोग क्या प्ले. तो बाद में मैं पूछूं क्यों नहीं मार सके आप, क्यों नहीं मार सके. तो कॉन्सेंट्रेट नहीं करी सार बोलते बच्चे. तो बोलती थोड़ा क्या वजन नहीं था बोलता एक बच्चा, दवा कर रहा है, इंटरनेट था, वजन नहीं था. तो मैं बोलता मोबाइल लेके मार, मोबाइल दे दो. हाँ बरूद लेकर मारा, बरूद है तो बरूद. तो ऐसा बाद में बोलता प्रैक्टिस नहीं है सारा बोलता एक बच्चा. सर डिफरेंट रीजंस आते हैं, तो मैं बाद में बोलूंगा दीज आर नॉट रीजंस. आपका गोल छोटा था, आपका गोल आप देखो, आपका गोल ये बोर्ड है. आपका गोल क्या है? व्हाइट बोर्ड है. कैन यू हिट? हाउ मेनी कैन यू बोलते पूरा डबल हाथ का. क्यों? आप क्यों मार सक रहे हैं? योर गोल इज बिग. तो ऑलवेज एम एट द मून. If you miss it, don't worry, you will be among the stars. सर मैं बोल रहा हूँ ना सर, ये 2 months में मैं उनको 100-150 कोटेशंस बोलता हूँ सर. जैसा कि आपको 3-4 बोल दिया आपने, नहीं ये गोल्डन वर्ड्स बोलते हैं. ये पैसे देने से भी नहीं आते गोल्डन वर्ड्स. इसके पीछे बहुत एक्सपीरियंस है. 48 years ओल्ड हूँ मैं. इसके पीछे 20 साल की मेहनत है मेरी. अब ये क्लास के पीछे 15-20 साल की मेहनत है, मेरा तजुर्बा है, मेरा बुक रीडिंग है, मेरे मूवीज को देखना है, दूसरों को देख के पूरे मिलकर आपके सामने ठहरा हूं मैं. समझ रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सपीरियंस है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वैल्यूएबल थिंग एक्सपीरियंस है. तो सेट योर गोल्स. तो कैसा है गोल्स, कैसा सेट करना? उसे एक है सर स्मार्ट बोलते हैं. आपको शायद मालूम पूरे मालूम स्मार्ट बोल के रखा जनरली वो प्रैक्टिस हम कराते हैं. स्मार्ट जैसे हम ये मानते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड.
तो ये सारी चीजें उनको क्या बोलते हैं 3000 रुपीज तो आप ले रहे हैं लेकिन 30,000 का मिलता है मैडम को रियली 30, 40, 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करें तो भी नहीं मिलने की नॉलेज है असद से 2 मंथ्स में मिलने वाली है उनको ये मैं प्रूव कर दूंगा वीकडेज में आपको 15-20 मिनट में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली लेकिन एक वीकडेज में क्या होता अम्मा कल क्लास को लेके तो क्या मिस होती थी एक जोक मिस हो जाते एक कोटेशन मिस हो जाते समथिंग वी मिस तो अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट अच्छा स्टूडेंट को नहीं मालूम अच्छे मार्क्स लाने वाला नहीं है मेरे नजर में जो रेगुलर टाइम को आता उन अच्छा स्टूडेंट है इसीलिए बोलते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस में अवेलेबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस अवेलेबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी आप बिजनेस कर रहे हॉस्पिटल चला रहे होटल चला रहे कोई भी चला रहे आप अवेलेबल नहीं है तो मुश्किल है आप पंक्चुअल नहीं है तो मुश्किल है अवेलेबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस तो ये सिंपल ग्रामर के अलावा हम स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस कराएंगे कन्वर्सेशंस प्रैक्टिस कराएंगे और सॉफ्ट स्किल्स बोलेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के सॉफ्ट स्किल्स लाइफ स्किल्स ये सारे चीजें बोल के आपको एक बेहतरीन शख्स बना के भेजेंगे यहाँ से सारा शफी सेंटर से एक अच्छा क्या बोलते हैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन निकल के बाहर निकलता आफ्टर 2 मंथ्स ओके इट इज माय प्रॉमिस इट इज माय कमिटमेंट मैं लिख के दे सकता हूँ आपको हाँ प्रोवाइडेड यू शुड बी रेगुलर टू क्लासेस यू शुड बी सिर्फ आपको कुछ भी करना नहीं है 3000 से बढ़ के 1 रुपया भी पे करने का नहीं है आपको रेगुलर क्लास को आना और अटेंटिव लिसनिंग अटेंटिव बिकॉज देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग एक 2 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग संध्या आपका क्वालिफिकेशन क्या है मेरा सर 10th अच्छा ग्रेट बोलिए कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग हियरिंग मानना लिसनिंग मानना डिफरेंस क्या है तो ऐसा तो आपको लग रहा है कि बड़ा डिफरेंस नहीं है बल्कि लग रहा है लेकिन बहुत डिफरेंस है हियरिंग मींस इट इज अ फिजिकल प्रोसेस हियरिंग मींस इट इज अ फिजिकल प्रोसेस लिसनिंग मींस इट इज अ मेंटल प्रोसेस इट इज अ मेंटल प्रोसेस विद इंटरेस्ट ठीक है तो जहां पे आपको जो है मेंटल प्रोसेस को बोलते हैं लिसनिंग तो लिसनिंग में भी देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग उसको बोलते हैं लेवल्स ऑफ लिसनिंग 4 levels first one is ignoring second one is pretending third one is selective and fourth level is attentive listening दो टॉपिक्स है सारा मेरे पास first one is ignoring means not really listening తెలుగులో చెప్తారు మీకు పెడ చౌన పెట్టడం అంటారు एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देना उसको बोलते हैं ignoring not really listening body present mind absent exactly body present mind absent that means you cannot produce results second one is pretending means नटिंचना act करना सुनने जैसा act करना no results selective listening means I listen where I have interest जहां पे मैं जोक लेकर आ जाके बोलता असद अच्छा जोक डाला आज बोल के बाद में क्या बोला ये अच्छा बोला लेकिन क्या बोला नहीं सुनिया that is called selective listening fourth one is attentive listening we have interest attention and concentration तो अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है तो एर्लियर डेज में पुराने दिनों में जब टीचर्स बोलते थे बच्चे जब स्टूडेंट्स बैठते थे पेड़ के नीचे तो उनके शोल्डर्स के ऊपर बर्ड्स आके बैठते थे बर्ड्स समझ रहे आप बर्ड्स कहाँ पे बैठते जनरली झाड़ों पे पेड़ों पे बैठते जहां पे उनको कोई हार्म नहीं है कोई थ्रेट नहीं है वहां पे बैठते लेकिन शोल्डर्स पे आकर बैठ रहे दैट मींस उतना जो है उन्होंने अटेंटिव लिसनिंग में थे उनका कंसंट्रेशन लेवल ऐसा था तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद ही सेज concentration is the essence of knowledge विवेकानंद ने बात की और मैं क्या बोलता हूं अंडरस्टैंडिंग इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन जब आप लाइफ को अंडरस्टैंड